तो ये आज की रीडिंग, हम कल का जो पोर्शन था क्लिंगिंग पर, 4 तरह की क्लिंगिंग्स बताई गई थी, जिसमें क्लिंगिंग टू सेंस ऑब्जेक्ट था, क्लिंगिंग टू रूल्स एंड कस्टम्स था, और तीसरा था व्यूज और क्लिंगिंग टू इम्प्रेशन ऑफ व्हाट वी आर। तो ये 4 में से 2 हमने कल कर ली थी, और आज हम व्यूज के प्रति और अपने अत्ता भाव के प्रति आज हम करेंगे। तो आज मैं जो रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ उसमें थोड़ा डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ कि कुछ पोर्शन है जो मेरा ट्रांसलेशन में शायद बिल्कुल, मैंने जो ट्रांसलेटेड कॉपी मुझे दिखी वो मैंने करी, तो इसलिए मैं ओपन रहूंगी उस चीज के लिए कि अपोज कर सकते हैं या फिर अपना मत दे सकते हैं उसमें। Much the same thing occurs with the next layer of clinging to views, typified as views of becoming and not becoming. These are the ways we extend out of direct experience to conjure up a future. That is, we either add continuity, purpose, and trajectory in life or deny that there is any purpose. We either get involved with action or development or declare that nothing can really be done, that everything is permanent, so there is no point. This is the underlying view of becoming and or not becoming, bhav or vibhav, that makes us unable to relate to the ongoing and uncertain nature of conditions. Those views solidify and spin, sometimes with great conviction. They carry the passion and thirst that initiate Kamma. So, you do not get out of cause and effect by following their signals. The harder you work at getting things finished and solid, the more that craving of becoming sets up new goals. But saying that there is no goal, that it's all an illusion, and let's not bother with the future, also has its negative effects. Failure to consider cause and effect has definitely affected and continues to affect our environment. Results inevitably proceed from action. So the more immediate goal is to find balance and act from there. तन्हा की अगली परत है भावनात्मक रूप से निर्भरता या उपादान दृष्टि के प्रति, दृष्टि बनने और न बनने के प्रति, जिसे हम कहते हैं भव या विभव तन्हा। तात्पर्य है कि भव और विभव तन्हा से तात्पर्य है कि वो तरीके जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भविष्य को संवारने के लिए प्रकट होते हैं, यानी हम जीवन के पथ में या तो इन्हें अनुभवों के आधार से उद्देश्यों का होना या इनकार करना ऐसे उद्देश्यों का, यह किसी कार्य या विकास या कहना कि कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि सब चीज अनित्य है, यह एक अंतर्निहित दृष्टिकोण यह है एक अंतर्निहित दृष्टिकोण के चलते हम असमर्थ समझने के जो असमर्थ होता है समझने के लिए कि जो चल रहा है उससे उसका अनिश्चित स्वभाव है। इस तरह के विचार या तो बहुत दृढ़ता या बदलते हैं या स्थूल रहते हैं। ऐसे कर्म का आधार बनती है यह लालसा या तृष्णा। ऐसे कर्म
इससे जो कर्म उत्पन्न होते हैं उस या तो वो लालसा के साथ आते हैं या तृष्णा के साथ, ताकि आप कारण और उसके परिणाम के से बाहर ना निकल पाए। चीजों को समाप्त और स्थिर बनाने के लिए आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही अधिक भव या बनने की लालसा नए लक्ष्य निर्धारित करती है। लेकिन यह कहते हुए कोई लक्ष्य नहीं है, यह सब एक भ्रम है, या कहे कि हम भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, यह इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम और हमारा यह विचार करने में यह विचार करने में विफल होना कि कारण और उसके परिणाम प्रभावित करते हैं हमारी परिस्थितियों को। परिणाम अनिवार्य रूप से कार्य पर आधारित है, इसीलिए तत्काल लक्ष्य है संतुलन को खोजना और वहां से कार्य करना। Our attempts at getting enlightened can follow the becoming or not becoming biases. It is about having the ultimate experience of deathlessness or is about the final cessation of Nibbana. Either way, the clinging to these ideas comes from view that configure either from timeless ground of being or a blissful oblivion as the goal. And these depend on whether the self-view incline towards becoming or towards not becoming. We probably switch from one to another dependent on whether we are feeling upbeat or fed up, or just our energies fluctuate. Of course, it does not make sense because the underlying bias varies. One moment we want an experience, and the next we want to get away from experience anything. A good question to ask dispassionately is, who is doing that? And that takes us to the fourth layer of clinging to self, clinging to the tendency of becoming or not becoming, generates the self who will be or who will be eliminated. But any idea of self arises within awareness, and it changes all the time, and such as form, and it changes all the time, such as from confident and relaxed to anxious and tense. Notice the itch and the thirst to be successful or even failure, as long as you are being something. As this urge affects the mind with regard to any form, any thought, and any scenario, so feelings and impression get clung to and become solidified into a self who is the agent or victim of the world. And that world, whether it is a sublime, immaterial, ultimate reality or authentic pure Buddhist tradition, or the benighted and unjust world of geopolitics, is then regarded as the foundation of a view and inclination with regard to the world's created. World it creates, it is created, it's created. Essentially self, मैं फिर से पढ़ती हूँ. And that world, whether it is sublime, immaterial, ultimate reality, or the authentic pure Buddhist tradition, or the benighted and unjust world of geopolitics, is then regarded as the foundation for a view and inclination with regard to the world it's created. Essentially, self and the world arises interdependently,
as two ends of the same designation process. Myself is embedded in my world. With this, skill and advantages get tainted with conceit, and the urge for more and negative conditions arouse despond or irritation. There is plenty of room of suffering and no end to the going on. And no end to the goings on that occur around in identification. So the four bases gives us windows through which to contemplate clinging. To them, in themselves, material food and the rest of it are useful. Rules and custom are useful guides. And in order to do anything well, you have to have a point of view and take into account your own energies, inclination, and skills. But there is also a need to witness and contain the passion and clinging around with all this. This is the purpose of cultivating parami, to check, witness, and move through the mind's assumptions and resistance. Then if you stay focused at the place where the mind lets go, there is a sense of ease and spaciousness. You get a glimpse of non-clinging. हमारा प्रबुद्ध होने का प्रयास भव तन्हा या विभव तन्हा पर आधारित भी हो सकता है। क्या यह मृत्युहीनता या डेथलेसनेस का अंतिम अनुभव करने के बारे में है, या अंतिम समाप्ति या फाइनल सेसेशन निर्वाण के बारे में? किसी भी तरह देखे, इन विचारों से चिपकाव या तो लक्ष्य के रूप में या कुछ अस्तित्व को बनाए रखने या आनंदमय विस्मृति में आते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे सेल्फ व्यू का झुकाव भवतना है या विभवतना पर। इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, साथ साथ पढ़ते भी रहें। ठीक है। हो सकता है हम भवतना से बदलकर विभव हो सकता है भवतना से बदलकर विभवतना हो जाए। यह इस पर आधारित होगा या हम उत्साहित महसूस कर रहे हैं या तंग महसूस कर रहे हैं, या सिर्फ ऊर्जा का बढ़ाना सिर्फ ऊर्जा का बढ़ाना या घटाना है। बेशक इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हर बार अंतर्निहित पूर्वाग्रह भिन्न होता है। एक पल हम एक अनुभव चाहते हैं और अगले पल कुछ भी अनुभव करने से दूर होना चाहते हैं। एक अच्छा सवाल यह हो सकता है कि यह कौन कर रहा है, और यह हमें तन्हा या उपादान की चौथी परत पे ले जाता है, स्वयं के प्रति चिपकाव या सक्काय दिट्ठी। चिपकाव भव और विभव तना के प्रति, वहां अत्ता का भाव उत्पन्न होना। इस चिपकाव जो भव या विभव तना स्वयं को उत्पन्न इस चिपकाव जो भव और विभव तना को स्वयं को उत्पन्न करता है, कौन होगा या कौन समाप्त क्या समाप्त होगा। लेकिन अत्ता का भाव जागरूकता के भीतर उत्पन्न होता है, और यह समय के साथ बदल जाता है, जैसे आत्मविश्वास रिलैक्स लेकर बदलती है चिंता या तनावग्रस्त होने पर। ध्यान दे, इच्छा
इच्छा का इच्छा होने और प्रबल कामना होने का होना सफल होने के लिए या असफल होने के लिए यह तब तक विद्यमान रहेगा जब तक आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यह तीव्र इच्छा प्रभावित करती है मन को किसी भी रूप, किसी भी विचार और किसी भी सिनेरियो या परिदृश्य के संबंध में। इसलिए इसलिए भावनाएं और धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी है। इसको वेदना और संज्ञा बोला गया, मतलब मैंने और ऊपर ले लीजिए, और ऊपर ले लीजिए। हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह ठोस लगती है अत्ता भाव के रूप में, जैसे संसार को चलाने में सहायक है या नहीं है। यह संसार चाहे ऊंची या अभौतिक परम वास्तविकता हो, अल्टीमेट रियलिटी, या प्रामाणिक शुद्ध बौद्ध परंपरा, या एक वंचित और अन्यायपूर्ण संसार को बनाना, अवश्य रूप से ये वाला पोर्शन है जो मेरे को समझ में नहीं आया था। आवश्यक रूप से देखा जाए तो अत्ता भाव और संसार दो रूप में अन्याश्रित रूप से होते हैं। एक ही पदनाम प्रक्रिया के अंत में मेरी आत्मा अंतर्निहित है इस संसार में। इसके साथ कौशल या फायदे दूषित हो जाते हैं और अधिक आग्रह और नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करती है। दुख के लिए यह बहुत जगह है या पहचान के आसपास होने वाली घटनाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए यह चार उपादान हमारा माध्यम बनते हैं जिसके माध्यम से हम विचार कर सकते हैं, अपने में भौतिक भोजन या बाकी नियमों और रीति रिवाज उपयोगी मार्गदर्शक है। ऐसा करने के लिए आपको एक अच्छा दृष्टिकोण रखना होगा और ध्यान देना होगा कि अपनी ऊर्जा, आदतों या रुझानों और अपनी क्षमताओं पर। यहाँ यह भी आवश्यक होगा कि देखें, इसके आसपास अगर कोई चिपकाव या जुनून हो तो उसे साक्षी भाव से देख पाना। यह पारमी के संवर्धन का उद्देश्य है। मन को जांचना, साक्षी भाव से मन की धारणाओं और प्रतिरोध के माध्यम से आगे बढ़ना। यदि आप उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां मन जाने देता है, वहां सहज और विशालता की भावना है। आपको झलक मिलेगी यहाँ नॉन क्लिंगिंग की। However, you do not resolve and clear these programs with parami alone. Cultivating parami develops one's intention to the point where one can have a choice over whether to act upon them or not. But the tendency remains as potentials in the mind, ready to engender more problems. To clear the tendencies of ignorance and becoming takes the factor of awakening, भोजंगा। हालांकि इन प्रोग्राम्स को अकेले पारमी के माध्यम से नहीं हल किया जा सकता या साफ किया जा सकता। पारमिताओं का अभ्यास और संवर्धन व्यक्ति के इरादों को विकसित करने में सहायक होता है। यह एक बिंदु है जहां किसी के पास कार्य
करने के बारे में विकल्प हो सकता है, उन पर कार्य करने के लिए या नहीं करने के लिए। लेकिन प्रवृत्तियां संभावनाओं के रूप में बनी रहती है, मन में और अधिक समस्या उत्पन्न करने के लिए तैयार। साफ करने के लिए अज्ञानता की प्रवृत्ति को और बनाने के लिए कारक बनता है जागृति या भोगजंग। यहाँ पर तो मुझे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो इसलिए मैं पहले सर से थोड़ा सा, अगर सर के पास। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धर साहब, आप इसको ना, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। हाँ, पहले वो शुरू से ही यदि हम देखें तो विरोधाभास है। जो एक बात कह रहे हैं उसको फिर दोबारा से उसको कर रहे हैं, मतलब उसको नकार रहे हैं फिर दोबारा से। देयर इज लॉट ऑफ नॉइस है। करते हैं क्वेश्चन, मिलजुल के कोशिश करते हैं, पहले बात में कोई मौका दिया जाए, डिस्कशन नहीं हो पाता। यहाँ पे जो चीज बच बात कर आवाज तो यदि कोई कुछ कहना चाहें, any comment anybody would like to make, it would be good, and then we can generate a discussion rather than my giving my view. That will be my view on this. जैसे अभी मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, of course it does not make sense because the underlying bias varies. One moment we want an experience and the next we want to get away from experience anything. अब यहीं पर अगर मैं रुक जाता हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ध्यान में बैठा हूँ और मैं पूरी सती के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं अपना आई एम माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। सो एक एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है, आई एम मुझे प्रीति, तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे मुझे मेरा मन बहुत शांत हो रहा है, भुजंग भी जो है वो उसको समझ रहा हूँ मैं। तो ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है तो I don't feel getting to get away from this experience. But he's not describing meditative experience, he's talking about day-to-day life. जिंदगी में ऐसा होता रहता है ना, अभी हम बहुत खुश हैं तो तुरंत उसके बाद कोई ऐसी घटना हो जाएगी, सोचेंगे संसार सारा व्यर्थ है, बकवास, सब बकवास है, छोड़ दो सब कुछ। This happens. Abhi means within a few minutes or few hours. So mind keeps on fluctuating between one extreme and another, isn't it? That's within our experience. जब जब ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, आप ही की उदाहरण ले रहे हैं, तो लगता है चलो मैं करता रहूं, और ध्यान में कुछ नहीं हो रहा, मन एकदम भटक रहा है, तो बकवास है, सब छोड़ दो, भागो यहाँ से। That's what is being described actually. भाव is becoming, हम चाह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, oh I should have more, let me practice more and more and more. तब तो ऐसा लगता है घंटी भी बज गई, तो यार घंटी क्यों बज गई, चलने दे दे। और एक ऐसी स्थिति होती है कि हम बैठे हैं और मन हमारा ऐसा बुरी तरह से भटक रहा है, इतनी उल्टी सीधी चीजें मन में आ रही हैं, नाना प्रकार के विचार आए जा रहे हैं, ये हो गया, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। आदमी सोचता है कब खत्म होगा ये सब, मेरा दिमाग ऐसा इतना ध्यान में बैठा हूँ, देखो अभी तक यही हो रहा है। आई थिंक इट्स रियली everything is useless, let me get out and run away from here and do something which gives me some pleasure. These kind of fluctuations do happen in our life. अब जैसे आगे भी इन्होंने लिखा है कि but any idea of self arises within awareness. हाँ, एक मिनट जरा वो स्क्रीन पे दिखा देंगे मुझे थोड़ा सर, ये स्क्रीन ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको ये वाला, ये सर। हाँ, ये तो यही बात होगी, तो डिस्कस हो गया ना। हाँ जी, और दूसरा वाला कौन सा बताया आपने कि और क्या कह रहे हैं आप राजेंद्र जी?
थोड़ा सा नीचे है, but any idea of self arises within awareness. थोड़ा सा this यही whole पर है। ये but any idea of self arises within awareness, ये तो सर मुझे भी नहीं समझ में आया। वो तो है ना कि क्लिंगिंग अगर होगी तो सेल्फ अपने आप उसके साथ कंजुगेट है ना। When you say there is a I want to have better meditation, और मैं अब बस अभी मैं अनलाइटन होने वाला, अभी निम्बान की टिप लगने वाली है, so there is a sense of me who is going to feel that, who is going to attain it. So whether it is bhavatana or vibhavtana, sense of self arises along with it. We have discussed it number of times कि तन्हा जागती है, उसके साथ सेल्फ जागता है कि सेल्फ पहले जागता है। तो we try to do that kind of discussion sometimes. So whenever tanha arises, then along with it, sense of self will arise. It's quite natural because tanha किसकी लिए, कौन किसकी तृष्णा जागेगी, कौन कर रहा है सब, तो प्रश्न तो सामान्य है ना। नहीं सर, ये सामान्य नहीं है सर, ये बट अवेयरनेस की बात कर It is not सामान्य for me. अब इसको आप उसको अवेयरनेस को ना वो थियोरेटिकल मीनिंग मत लो। यू जस्ट सेइंग कि हमारे समझ हमारी जो नॉलेज में आता है कि सेंस ऑफ सेल्फ अराइज हो रहा है। सो काइंडली डोंट रिलेट इट टू द प्योर अवेयरनेस एंड थिंग्स हम देख पाते हैं। हाँ, उस मेरे बिल्कुल कोलोकियल भाषा में बात की जाए, इज टॉकिंग इन प्योरली इन नॉर्मल कॉमन वर्ड्स। दिक्कत ये हो जाती है बीच बीच में पाली शब्द डाल देते हैं तो हमको लगता है इट मस्ट बी ऑल with reference to that. So I don't think it is like that. He's describing in colloquial terms to an audience which can understand in good English. And his English language command is very high. हम लोगों को इतनी अंग्रेजी नहीं आती तो इसलिए हमको दिक्कत होती है। क्योंकि हम लोग सभी साधना कर रहे हैं। हाँ, तो ये सामान्य बातें जो हैं, ये is describing this issue of 4 types of clinging which we experience in day-to-day life. साधना करते टाइम नॉर्मली क्लिंगिंग नहीं होती unless we have very strong good experience. इसके एक मिनट ऊपर ही रहे ऊपर। And it changes all the time, such as from confident and relaxed to anxious and tense. Notice the itch and there to be successful or even a failure as long as you are being something. Yeah. Like, sense of self है ना इसमें भी। हम Being something means I am when we sit for sadhana, where do we think that we want to be something? साधना की बात नहीं हो रही, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, साधना में बीइंग समथिंग होता है 2 कंडीशंस में। एक तो बहुत अच्छी साधना हो रही है, लगता है बस अभी आई एम गोइंग टू बी सोतापन्ना, तो बीइंग समथिंग, दैट्स इट। और अदर एक्सट्रीम है कि I am a total failure. The moment I say I am a total failure, I am being something. So it happens in sadhana also, but obviously it happens in our day-to-day life much more. और ये वाला सर, Yeah, right. self And when there is a sense of self, then there is a sense of one who is knowing the world. I am knowing, I am seeing you, isn't it? So at this moment, this is my world. These 11 people are my world, or 10 people, or whatever. That is my world, and it is me and the world. There is always duality in that process. So it's quite obvious. This is आपने तो बहुत अच्छा शब्द, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया था, अन्य अन्य। Yes, बहुत ही मुश्किल था मुझे। Perfect word. And I asked Nikhil कि ये कैसे pronounce करें? पठान में पढ़ा था ना, अन्य मन्य पच्चे। It is exactly that. They are dependent on each other. In the sense of self, the world will arise. No sense of self, only feelings arise. Sense impressions arise. That's all. There's no world, no meaning given to it as a world. As an external, independent reality. हमको तो नॉर्मली ऐसा ही लगता है ना, संसार एक अपने में इंडिपेंडेंट रियलिटी है और उसमें मेरा आत्मभाव जुड़ा हुआ उसके साथ, क्योंकि मैं अपने को एक
एंटिटी मानता हूं तो संसार भी एक एंटिटी बन गई. So obviously this is the culmination of the practice. As long as sense of self is there, the sense of world will also be there. And with this, skill and advantage gets tainted with conceit and urge for more, and negative condition arouse despond or जो भी हमारी एबिलिटीज हैं, इस सेंटेंस को हाईलाइट कर दो ना. जो जो जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं उसी को हाईलाइट कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सबको भी और मुझे भी. हाँ, ये है ना, विद दिस स्किल्स एंड एडवांटेजेस गेट टेंटेड विद कंसीट एंड अर्ज फॉर मोर. तो हमारी जो भी क्षमताएं हैं वो चाहती हैं कि ये और अधिक बढ़े. इट अप्लाइज टू मेडिटेशन, इट अप्लाइज टू डे टू डे लाइफ. मेरी क्षमता है कि मैं पैसे कमाऊं तो मुझे, और उसको मैं अपने एक सेल्फ व्यू से कंसीट के साथ उसको जोड़ता हूँ. देखो मैं कितना अच्छा हूँ, आई कैन डू. मुझे मोर एफर्ट करना चाहिए इसी डायरेक्शन में ताकि और पैसे कमा पाऊँ. और अगर मेरी नेगेटिविटी हो रही है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, बिजनेस डूब रहा है, तो मैं तो किसी काम का नहीं हूँ. एंड देन यू गो टू एंग्विश एंड डिस्परेशन, एंड गुस्सा आने लगता है अपने पे, दूसरों पे, क्योंकि कोई ना कोई तो गुस्से का कारण बनता ही है. एंड वी गेट इनटू एंग्विश, और ज्यादा हो जाएगा तो डिप्रेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स. सो द कंसीट इज एसेंशियली सेंस ऑफ सेल्फ. So it wants to increase. एक वो एडवर्टाइजमेंट आया था, दिल मांगे मोर, so you want more. It would be more of despondency, it would be more of joy. So we get lost. Yeah, John Suchito's English is quite deep and not common. Yeah, commonly used language. So that is what creates problems. He has done MA in English from England, so you must That's right. हम लोग इंजीनियर लोग हैं, हमारी इंग्लिश उतनी जितनी तो काम चल जाए. ऑब्वियसली हमको दिक्कत होती है उसमें. सर ये देखिए, ये जरा रूल्स एंड कस्टम्स आके थोड़े रूल्स ऊपर ले जाओ. हाँ, ये ट्राइंग टू, अब वो चार जो उपादान थे ना उनको इकट्ठा कर रहे हैं ना. अब उन्होंने दिट्ठी के साथ अत्तावाद उपादान भी जोड़ दिया उसको. दिट्ठी की बात की थी ना, उसमें चौथा जो था उसको डिस्क्राइब नहीं किया, वो उसके साथ रिलेट कर दिया कि दिट्ठी उपादान और अत्तावाद उपादान दे आर ऑल इन मैच, दे आर ऑल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद ईच अदर. नाउ ही इज ट्राइंग टू सम अप ऑल ऑफ दैट कि जो काम उपादान है, मटेरियल फूड एंड अदर थिंग्स ऑफ दैट काइंड, और शीलवत उपादान है, उनका अपना फायदा भी है. उन सब चीजों का अपना फायदा है. सेंसरी इनपुट्स का फायदा है, रूल्स रेगुलेशंस का फायदा है, बट द मोमेंट यू होल्ड ऑन टू देम देन यू गेट इनटू ट्रबल. यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, टीचिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, उसके साथ चिपकाव नहीं पैदा करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा जा रहा. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, कब दी थी? सुबह दी थी कि भाई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है. जैसे सुबह बंते जी ने अपना एक अच्छी एग्जांपल दी थी अपनी की, हमको हमारा एक रूल है कि हमको बाउल से खाना खाना चाहिए. अब आप किसी रेस्टोरेंट में गए और लोगों ने बिठाया आपको और कहा कि ये चेयर टेबल्स रखी हुई है, सब कुछ रखा है, खाना लीजिए और खाइए. आप कहेंगे नहीं मुझे तो बाउल में ही खाना है. Then you will create problems for everybody there. So one of the qualities जो भिक्षुओं के लिए या हम सबके लिए भी वैलिड है कि he should be सुभरो, he should be easy to take care of him. So that means you should have the ability to make the mind flexible. Actually हम flexibility को महत्व नहीं देते, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है. जब अभिधम्मा अगर ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें होलसम चित्त के 19 क्वालिटीज बताई गई हैं. उनमें 12 क्वालिटीज फ्लेक्सिबिलिटी की हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. एंड वी डोंट सब फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में तो जो हमारा ये तो बहुत
नहीं जैसे आप साधक अगर फ्लेक्सिबल हो गए आप तो समझा ही हम तो नहीं, फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप समझ ही नहीं रहे क्या कह रहा हूँ मैं। तो एक एलिवेटेड पोर्शन पे आदमी पहुंच करके इस बात को कर सकता है। this is the attachment to rules and regulations. Yeah, that's what it means. You are feeling that अगर हम अटैच नहीं होंगे तो हम नहीं काम करेंगे, हम मूर्ख हैं क्या? Have we gone crazy? एक डिसिप्लिन चाहिए ना, एक हाँ, लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो तो discipline. करना पड़ेगा ना। Yeah, of course, certainly. मुझे इतने बजे उठना है और मुझे ध्यान पे बैठना है, जिस समय Right. मुझे ये ध्यान आता है तो मैं एकदम उठ जाता हूँ। अब ठीक मान है। लीजिए मेरा मन कह रहा है नहीं यार छोड़ आज ही, मान लीजिए ये भी तो मुझे मन कर सकता है। देखिए, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्लोज रिलेटिव बीमार है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं कहूँगा नहीं ये तो टाइम मेरे ध्यान का 7 बजने वाले, मैं तो जा नहीं जाऊंगा। That is stupidity. It's called attachment. It's called शीलबद्ध परामर्श. What the hell does it matter? I'm हाँ ठीक है, a household. That's- I have to take care of everything. So if you make a hassle out of everything, even about meditating, then you are getting caught in rules and customs. ध्यान करने का क्या मतलब है? ध्यान करना नहीं होता, ध्यान रखना होता है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें ध्यान कर रखिए ना। So we have to see that. That's what is meant by flexibility of the mind. It does not mean कि शील में भी flexibility हो गई, समाधि में भी flexibility हो गई, कुछ भी कर लो. It doesn't mean that. The flexibility is of various kinds. Flexibility to change the point of view, flexibility to learn new things, flexibility to drop old and bad habits. These are all flexibilities because we are attached to them. उपादान है उनके प्रति। एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस ही पहननी है और दूसरी तरह की ड्रेस किसी ने कह दिया पहनने को तो पता नहीं दवाई मच जाए। आप you can see this kind of small fringe things which we get very strongly attached. So it's not talking about practice, it's about rules and customs. The point is when a monk writes like this, rules and customs are useful guides, he admits it, but then says that if there is also a need to witness and contain the passion and clinging around all this. अब ये आपने अभी एग्जांपल दिया, but for people who are serious meditators या जो monastery में रहते हैं, they need to follow the rules. Yeah, they do follow. They follow the rules in the monastery. That's what I'm saying. But they're not operating this. अब कि आप देखो compromise करो rules and नहीं, customs में. Please understand what is being said, right? Only don't misunderstand it. I request you to reflect deeply. Monks monastery से बाहर भी जाते हैं, यहाँ आए हुए थे ना 5 दिन से जानसिया धम्मसिया आए हुए थे ना। अब वो भी इंसिस्ट करते हैं मैं जो मोनास्ट्री में करता हूँ मुझे वही करना है। हम लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो जाती। मैं तो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो होटल में नहीं रहूंगा। Yeah, you can make I remember you can make a big fetish out of it. I am supposed to live in a very simple way. You make a big fetish out of simplicity. उसके बाद इतना अटैच हो गया सिंप्लिसिटी के प्रति, नहीं मुझे तो ऐसे नहीं रहना, मुझे तो होटल में नहीं ठहरना, आई कांट स्टे इन द 3-star होटल, तो बहुत गलत हो जाएगा, मेरी इंप्रेशन खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। मॉन्क्स का रूल डिसिप्लिन नहीं है, मॉन्क्स को जमीन पे सोना होता है, मैं सड़क पे सोऊंगा। इमेजिन धम्मस्य सिंह मैं तो सड़क पे सोऊंगा। What will we do? Will it be proper for? Will it be appropriate? Will we appreciate it? Will we like it? उनका रूल तो यही है, जब वो टुडांग पे जाते हैं they sleep on the ground anywhere, but then that's a particular activity. So we have to understand, na? You can't get attached to rules. मुझे तो ऐसे ही सोना है, जमीन पे ही सोना है, तो कह रहे भाई यहाँ पे तो इतनी जगह है, पलंग है और जमीन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, नहीं पलंग हटाओ मेरे लिए, मैं नीचे सोऊंगा। You make a hell of the people who are taking care of it. So monks are supposed to be flexible in these things. Very important, very important. Rules and regulations are meant for certain purposes. Okay, they're supposed to inculcate a sense of discipline, but you don't hold on to that discipline as if that will give you the freedom from liberation. No, ultimately everything has to be let go of. It becomes a part of you. It is the spirit with which you follow that matters, not the letter of it. तो वो हमको बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो हमको बहुत
इंपॉर्टेंट है कैच करनी. उपादान ऐसे ही होता है. And I have gone through that myself, and I know that very well. How strong the upadan can be, and how much we can belittle others. Oh, देखो मेरा शील कितना बढ़िया है, इनका शील तो किसी काम का नहीं. मैं कितना अच्छा साधक, मैं तो कभी अपनी साधना छोड़ता ही नहीं. मैं तो हमेशा कुछ भी हो, I'll sit and sit every day in the morning, evening 1 hour. कुछ भी हो जाए, घर में हाहाकार मचा हुआ है, मैं तो बैठ के ध्यान नहीं करूंगा. What the hell? You have to understand that. See? So flexibility does not mean license. Flexibility means ability to see and change things. That's it. So when Buddha went to the palaces, he stayed there. He didn't refuse to stay there or refuse to eat excellent food which was offered to him. No, I am supposed to be a very simple living, say high thinking, simple food, simple dress. No, somebody gave him a golden dress or gold embroidered cheever, 2. He had brought 2. He said, okay, 1 you give to me, 1 you give to Anand. That's okay. तो ये जो उपादान है ना, it's a very subtle thing. So we need to really deeply reflect on it. क्यों? That creates a sense of self. It's a very important point. If you do it naturally, fine. But if you can let go of them naturally, even better. So what is the intention behind that? That is the key thing. Is the intention to be helpful to the people who are looking after me, or the intention that I have certain rules and I have to follow them certainly in this particular manner? That's it. That's what matters. If I have the intention, if I'm a monk and I have the intention that ये बेचारे वैसे ही परेशान हो गए मेरी हेल्प पर, देखते देखते मुझे यहाँ तक लाए, खाना करना, ये करना, वो करना, मैं विदेशी में बीमार भी हो गया, अब मैं उनसे कहूँ नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे नहीं रहूंगा, ये नहीं रहूंगा. एक रात की बात है, जैसे रहना रह लो, खत्म करो. So we have to see that. No? It depends on the environment, on the situation. We try to follow everything. I mean, rules and regulations are the secondary parts of the Dhamma. It's not Shila. It's not Panya. You're not leaving aside Panya and say, oh, it doesn't matter. Every time break hai. It's a break period, so no Panya is needed. No Samadhi is needed. No. It's only talking of rules and regulations, which are the secondary aspects. They're useful for day-to-day functioning, useful to cultivate discipline. But if your discipline is a mental phenomenon, not a physical phenomenon. हाँ जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने अभी जिक्र किया था 19 wholesome qualities of Chitta. I was wondering whether you can mention a few of them as per our understanding, if you can readily remember a few, not the complete list. Because I'm working on it, I'll just speak it out immediately. अच्छा. This is the wholesome chitta की जो qualities हैं, पहली है अलोभा, freedom from greed, then is freedom from dosh, then shraddha, sati, thiri, otappa, tatra majjata means equanimity. These are the 7 factors. Then 12 various kinds of, then there are kaya pasaddhi, chitta pasaddhi. And then flexibility of kaya lahuta, chitta lahuta, kaya mudita. They are all flexibilities of various kinds. Different words. Lightness of kaya is actually meaning consciousness, and the chitta means consciousness, and kaya here means the mental factor. So lightness of consciousness, malleability, wieldiness, proficiency, rectitude. These are the various translations. So the tranquility of the mind, the ability to change,
ability to I read out to you the brief definitions of them. The lightness, its function is to crush heaviness. It's manifested as non-sluggishness. Then Mudita, twofold malleability, is characteristic of subsiding of rigidity in the mental body and consciousness. Its function is to crush rigidity. It manifests as non-resistance. Then wieldiness, it has the characteristic of subsiding the unwieldiness in the mental body. It manifests as success of the mental body in making something an object. Then proficiency, characteristic of healthiness of mental body, and its function is to crush unhealthiness. Absence of disability, proximate causes this. Then ujukata, straightforwardness, uprightness, its function is to crush the tortuousness away. And then when they are described, it means the ability to change the point of view, the ability to change your mental, the mental factors and things of that kind. There are so many factors of lightness, malleability, wieldiness, proficiency, which are integral parts of wholesome chitta. So according to Abhidhamma, if these are not present, our chitta is not wholesome. It's a very big, tall order. So probably for most of us, chitta is, according to Abhidhamma, is never wholesome. Very, very insightful. Thank you, sir. It's very profound. These things are very profound, very subtle. Ability to change your views, ability to adopt new views, ability, the mind has the malleability of that kind. हम वो engineering में use करते हैं ना, malleability and those kind of properties. Exactly, some words are being used. What you can draw into wire, what you can change, give a different shape. So if you can give a different shape to your mind, if you can change your perception according to the new reality and not get caught in the perception. मैं तो ऐसा सोचता था, अब ये तो ऐसा नहीं है. So that all is actually indicator of dropping of upadana, various kinds. Thank you, sir. Very nice. ये एक सवाल जो मन में बार बार आता है वो ये है कि जैसे नर्सरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट है. Now, a student who is in the higher secondary or has to then go to the college, तो वहाँ जो जरूरत चीज है वो करनी ही पड़ेगी. जी जी बिल्कुल. But if I am straight away, you know, at my school level, if I am told about a university, the functioning where I have to be a research scholar and I know so much that I can take care of the research and everything, it's not possible. So what I'm trying to say is here that when a person is introduced to a particular path, उस path के rules and regulations, उसके customs, उसकी teachings को पूरी तरह से absorb करने के लिए इंसान को पहले तो कोशिश करनी पड़ेगी ना कि वो follow करे. अगर वो नहीं करेगा तो खो जाएगा ना. फिर ये कहाँ कहा जा रहा है कि टीचिंग को नहीं फॉलो करना. अभी आपने जैसे एक शब्द कहा कि हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए. माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वही माइंड की बात होना चाहिए ताकि आप नए विचारों को अडॉप्ट कर सकें. अपने विचारों के प्रति जो अटैचमेंट है उसको ड्रॉप कर सकें. वो कब करेंगे? जब आपकी प्रज्ञा आपको बताएगी कि देखो ये गलत विचार है. यहाँ हम टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. तब भी आप उसको ड्रॉप नहीं करेंगे. उपादान जो होता है ना, उपादान के कारण जो चीजें हमें लगती हैं कि ये ठीक है और ये ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है, हम फिर भी उसको ड्रॉप नहीं करते. नहीं, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं कि मेरा उपादान जो है जी जी उन टीचिंग्स के प्रति बनना चाहिए ना, जो मुझे चाहिए. Don't equate rules with teachings. No, that's not correct. Rules are not teachings. Rules are matter of convenience so that we can live in a particular manner. What is there if I eat? How does it matter whether I eat in a ball or not? बताओ मुझे. How does it matter in my getting enlightened? Does it really matter?
That's not. Yeah, that is what is meant by rules and customs. Yeah, that is what is meant. How does it matter whether I sleep on a floor or I sleep on a high bed? Yeah, Buddha has made that regulation for certain purposes. But does it really matter ultimately? No. There are stories of Grihasthas who became anagamis, who used to teach. पॉइंट ये है कि जी एक जो मॉन्क बन रहा है उस मॉन्क को शुरू में ही यदि शुरू में थोड़ा कहा जाएगा यार, आप समझ ही नहीं. This teaching which you are doing, the study level at which you are serving, we presume that we are all senior meditators. It's not meant for newcomers. It's not meant for people who are attending the first meditation course. Not at all. Right. ठीक. Not meant for them. जरा इसको नीचे और ले जाएं प्लीज. In the first 10-day course, you're not going to tell them ये rules and regulations है, but इसकी मर्जी है तुम्हारी follow करो या नहीं करो. ऐसा थोड़ा ना कहेंगे. This is meant for people who have really practiced well and enough, and therefore got attached to the rules. That is the point. How will a newcomer get attached to a rule? उसके लिए तो rule वैसे ही भारी पड़ रहे हैं, है ना? So we have to see all our discussions in this forum for last 2.5 years. I presume that we have an understanding of the basic fundamentals, though we try to refine it again and again, of course, because we all need to remember it again. भूल जाता है. It's not easy. भूल जाता है in the sense कि जब जरूरत पड़ती है तब नहीं याद रहता, बाद में याद आता है, अच्छा ये करना चाहिए. तो उस प्रोसेस को जो हमारा गैप है between our wisdom and our life, that gap we want to reduce. That's what we are all doing for last 3 years. We are trying to reduce that gap between our own wisdom, our own knowledge, our own understanding, and its reflection in our day-to-day life. वो हो नहीं रहा है. उसका partly reason ये कि हमारी understanding clear ठीक नहीं है. That's the problem. तो वो understanding ठीक करने के लिए इस तरह की पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं और इस तरह की चीजों की डिस्कशन कर रहे हैं, डिफरेंट सूत्रों की डिस्कशन कर रहे हैं. और वासामित्र हमने इंटेंसिव डिस्कशन किया. क्यों किया? ताकि हमारी समझ क्लियर हो जाए, और जब समझ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो फिर हमको उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी. इनफैक्ट in philosophy it is said that if you are not able to put your understanding into practice, it means you have not understood it. That's what Socrates used to say. That's what Vedanta says. The problem is that your understanding is not thorough. You've not investigated it thoroughly. एक बार पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो क्यों नहीं जियोगे उसके कारण. That's one way of looking at it. Buddha goes even deeper. He tries to find you आपकी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं काम आ रही, उसका ये कारण. So that is the greatness of a enlightened master. He tells us कि तुम्हारी बुद्धि के स्तर पे सब समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हो पा रहा. उसके ये कारण है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये निवरण है, ये आसव हैं, ये अनुशय क्लेश हैं. That's what is the great tremendous contribution of the Buddha. He's telling us where are we getting taught, but where are we getting stopped. This is a very important place where it gets taught. In उपादान फंस जाते हैं. हम देख ही नहीं पाते कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण नहीं है. ये दिक्कत. सर मैं एक छोटा सा ये हाईलाइटेड पोर्शन है, शायद मुझे इसकी अंग्रेजी मेरे को शायद नहीं समझ में आई है. तो पहली चीज तो ये कि पारमी से इन्होंने जो ये है इसको रिलेट किया है, और दूसरा then stay focused at the place where the mind lets go, and there the sense of ease and spaciousness, you get a glimpse of non-clinging. इससे क्या मतलब हो रहा है मेरे को? कभी भी हम सामान्य हिंदी में बात करता हूँ, कभी भी हम अपने जीवन में अगर हम देख पाते हैं कि यार देखो ये मेरा विचार जो है ना ये गलत था, और उसको हम ड्रॉप कर दें, we let it go, such a great relief. But पारमी का क्या संबंध हुआ उससे? Because that is what will help us to do that. पारमियों में क्या क्या चीजें हैं, वही तो है सारी. हाँ, जैसे दान, दान, and they are preparatory steps. These are the preparatory steps. शील है ना, then पन्या है,
such a main, the main thing there is the panya. yes. The panya, progressively हम pranya को cultivate करते हैं. That's what we are trying to do. When we sit together and discuss, this is the way of cultivating panya. It's not. This is probably the most important meditation if you do it properly. We're trying to understand ताकि हमारे doubts clear हो, है ना? वही कर रहे हैं ना? तो doubts clear करना ही तो है. विचिकित्सा समाप्त होगी ना. साधना करने में जो एक हमारे निवरण है, विचिकित्सा, doubt, and that is the fetter, second fetter. First is sakkaya ditthi, second is doubts. That is the second. जब तक डाउट बने रहेगा हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. तो साधना को जो शिक्षा है भगवान की, वो कहने को बहुत सरल है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है. When you start practicing, then you realize what the complexity are. Otherwise, you can get way late. तो ये जो सारी पारमियां बताई गई, दान, शील, नेखम्मा, renunciation, which means partly letting go. Renunciation is like that. So when you practice all of them, slowly build them up. अधिष्ठान भी है, एक तरफ से letting go है, एक तरफ से अधिष्ठान है. See the dichotomy. अधिष्ठान में तो you make a resolve. दूसरा कह रहे हैं let go. You have to balance them. Both of them are needed. So there is a inherent paradox in overcoming the illusions. जो हमारे illusions हैं, जिस sense of self के साथ related, वो इन paradoxes को साथ से लेके ही remove होंगे. So every step we need to have wisdom actually. Yeah, of course. उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा. चीजों में भी करने में wisdom चाहिए. Yeah, इसीलिए उसके different aspects बताए जाते हैं. Wisdom का एक aspect है दुख को समझो, प्रतीच्य समुत्पाद, 3 लक्षण, है ना? निष्क्रमण करो, चलो और कुछ नहीं तो निष्क्रमण ही शुरू कर दो. So नेखम्मा and दाना are also similar actually. दान में भी तो निष्क्रमण किया जा रहा है, पैसे का दान कर रहे हैं, कुछ एफर्ट कर रहे हैं. That also is letting go. So you can see there दोनों के क्यों लिख रहे हैं. दान has one particular material aspect is focus, in nekhamma mental aspect is focus. You are giving up attachment. So all this is a very beautifully laid out path for us to, if you reflect on paramis one by one, you can see that that's a wonderful path which has been laid out for practice, for strengthening our practice. और उसमें इस तरह के विरोधाभास भी आते हैं. You see them. और डुप्लीसिटी भी आती है. एक ही चीज को दो तरह से बताया जा रहा है, because it's needed. तो ये हमारे अपने अनुभव की बात है कि हाँ, जब कभी भी हम अपने जीवन में कोई अपनी बहुत चेरिश्ड परसेप्शन को ड्रॉप कर देते हैं ना, तो पहले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उपादान होता है. मैंने जीवन भर ये माना कि ये आदमी बहुत खराब है, और सडनली मुझे डाउट होने लगा, यार ये मैं ऐसा मान रहा हूँ, गलत है यार, ऐसा नहीं है. वो बेचारा परेशान था अपने कारणों से, इसलिए ही वाज बिहेविंग विद मी इन दैट. जब मुझे पता चला उसकी बैकग्राउंड, उसके लाइफ में इतनी टर्मोइल हुई थी, इसीलिए वो मेरे साथ इस तरह बुरी तरह से बिहेव करा रहा. Suddenly a font of compassion and kindness arises. How wrong I was there in assuming him to be of that kind. Now, if you have that always with you constantly, the sense of anicca, that ajancha कहते हैं uncertain. Every perception is uncertain. Then you are always safe. So then there is a sense of ease and spaciousness. अरे कितना बाजी बोझ हट गया मेरे मन से. मैं उसको गलत समझ रहा था, मैं उसको अच्छा सारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए, सारी चेंज, परिस्थिति बदल गई, जिंदगी बदल गई, हम दोनों के रिलेशनशिप ही चेंज हो गए. कहाँ पे इतना व्यापार था आपस में, रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेन था, सब छूट गया. क्यों? मैंने अपना परसेप्शन ड्रॉप कर दिया. इन द लाइट ऑफ नॉलेज, इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. That's what is meant here, you know? So paramis are actually enabling us to move through whatever resistances we have. Yes. Thank you so much. Thank you. Okay. चलो थोड़ी देर शांत बैठ के. Deepak ji wants to say something.
is raised. हाँ जी दीपक जी। रिसेंट टॉक थी अजान धम्मसिया की, जो 3 टॉक्स दिए हैं, आई फाउंड देम वेरी वेरी यूजफुल। और हालांकि शायद आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम सीनियर मेडिटेटर्स हैं, और एटलीस्ट मैं तो समझता हूँ कि मैं सीनियर मेडिटेटर नहीं हूँ। मुझे यस फंडामेंटल चीज़ें कुछ क्लियर हैं, और उसी क्लैरिटी के हिसाब से मैं जो कमेंट कर रहा हूँ अजान धम्मसिया की टॉक्स को, मुझे बहुत ही That's not the topic over there. Of course it was very कहेंगे। That's not the topic. Let's not digress from that, please. आप जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, इससे लॉट ऑफ confusion arises at many stages in the book reading, and I tend to ignore in totality of the things. I do tend to ignore. I do try to get some ideas, central idea out of the talks we are doing, but in details, no, it is quite often confusing. So I do skip and I don't comment. तो जैसे अब थोड़ा सा बड़े क्रूड वर्ड में रंजन जी ने कह दिया कि हम लोग स्कूल के लेवल के स्टूडेंट हैं, या मैं तो कहूँ प्राइमरी के लेवल का स्टूडेंट हूँ। हमें लगता है कि जैसे हमें यूनिवर्सिटी का रिसर्च वाला जो एक्सपोजर दिया जा रहा है, एट टाइम्स आई फील सो। Maybe. I don't know. मुझे नहीं मालूम. नहीं, I आप can't- कुछ कहना Maybe चाहते हैं? others can comment on it, and then we can decide whether we should do book reading or not. Yeah, I have no issue about it. If everybody feels that this book is really getting out of our head, so we can stop. हमें कौन सा कोई इसके प्रति उपादान है कि यही पढ़ना है, छोड़ देते हैं. No problem. I mean, after all, these are the people who are always present. You know, we have a very limited set of people. 10-12 लोग ही तो होते हैं. I think most of them are present today. So we can decide whether we want to continue with this book or stop. No problem. So please express your views, and if it is creating confusion and if it's not helping, why need it? At times, not always, but at times. You have to take a decision. No? We can't have it. We can't have it ambivalent. We have to take a decision whether we want to continue or not. Kindly feel free to say it. I have no particular agenda that this book should be read. I've read it. That matter. जी, मैं आपसे एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगी। अगर जो चीज समझ में नहीं आ रही है, या फिर हम ऐसा, मैंने राजेंद्र जी को भी वाज ऑफ द सेम व्यू कि बुक का थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक सो बहुत ज्यादा जल्दी ना करके हम थोड़ा थोड़ा ही कर ले, या बट क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आ रहे ये कि इग्नोर कर दिया जाए कि मैं नहीं पूछूंगा बिकॉज आई एम सो एंड सो, तो वो आई थिंक सो दैट्स पूछना इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन वी स्टॉप डूइंग व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। एक्चुअली हमारे को ये काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल, ये वाली बात है कि अब कल हमारा। I agree with you, Poonam. We should continue reading and keep on asking questions. जी, हाँ जी, आई थिंक सो वी विल Because बॉदर that will help us. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हेल्प नहीं हो रहा। मैं अच्छा, आज सेकंड क्वेश्चन पूनम जी, आप पूछे हैं, आपने जवाब मिले आपको, कितने आपके माइंड में रजिस्टर हुए हैं ये बताइए। देखिए रजिस्टर, जैसे आज ये नया चीज मैंने पढ़ा कि पारमी को रिलेट कर रहे हैं तन्हा भव तन्हा से, तो मैं आज जरूर इसको, मेरे पास थोड़ा सा मैंने इसको कंटेम्पलेट नहीं किया, लेकिन इट्स अ पॉइंट टू यू नो थिंक ओवर इट कि हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल होते हैं कि कभी कभार आप चीजें पढ़ रहे हैं और आपके बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक करती है, और फिर देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट। तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पर आपको ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको, अब जब आप पूरा पढ़ते हैं, क्लास 12th की भी पढ़ाई की होगी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपने पूरा ही याद है आज की डेट। तो यू हैव क्लियर्ड, मे बी यू हैव हायर क्वालिफिकेशंस भी ले लिए, बट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई। तो जो जितना जितना हम अप्लाई करते जाएंगे उतना रजिस्टर होता जाएगा। दैट्स हाउ आई टेक इट। थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, लेकिन उसको अप्लाई कितना कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होगा। और मेरे को लगता है सवाल तो शायद
अंतिज भी कह रहे थे कि रिपीटेशन होती है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, वी आर थोड़ा सा बुद्धि जड़ है, हो सकती है, तो ठीक है, पार्ट ऑफ इट। दीप्ति जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी Yeah, I thought maybe this is a good opportunity to reflect on, कि ये जो दीपक जी म्यूट कर लीजिए अपने को। book reading हुई है, तो उसमें what some of us might have learned or struggled with, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बात कह लूं कि एक्चुअली जो जिस लैंग्वेज में या जिन शब्दों में ये बुक कही जा रही है, तो थोड़ा एक स्ट्रगल तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग शायद एक अलग तरीके से बातों को सुनने समझने के हैबिचुअल हो गए हैं, तो देयर इज डेफिनेटली अ स्ट्रगल। मैं गरिमा को भी देखती हूँ, जब वो ट्रांसलेशन करती है तो काफी चैलेंजिंग लगता है। एंड एट द सेम टाइम मे बी the word seniority, I don't know how to define that, but at least we've been people who've been really attempting to understand the Dhamma and practice the Dhamma. तो कोई भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये तो होता ही है कि देयर आर स्टेजेस ऑफ लर्निंग, समटाइम्स हम लोग कम समझ पाते हैं, कभी थोड़ा सडनली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हम 12-13 लोग जो भी हैं, सब अलग अलग तरीके से समझ पा रहे होंगे अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। एंड गिवन दैट स्ट्रगल, आई थिंक वी जस्ट, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह रही हूँ शायद ये बात कि अलग शब्दों में बात को पढ़ने से एक्चुअली इट हैज ब्रॉट आउट, at least put some spotlight on the areas where I was not really understanding things. या मुझे लगा कि जैसे संखार जो है वो मुझे काफी समझ में आ गया, क्योंकि हमने पहले उस पर काफी रिफ्लेक्शन, डिस्कशन, व्हाट नॉट, and yet at the same time when it was presented in a slightly different manner, I realized that there is more opportunity for me to understand it deeper. और मुझे इस बुक से लाइफ में बहुत मतलब हेल्प हुई है। मेरे एक एटलीस्ट प्रोमिनेंट संखार को, जिसके साथ मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ, अलग अलग तरीके से किया है, उसको समझने में, उसको कुछ हद तक रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प हुई है। तो वो एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है इट हैज जस्ट गिवन मी मोर कॉन्फिडेंस टू गो ऑन। मुझे भी बीच में पहले लगा था जान सुचितो का थोड़ा, मतलब उनकी टॉक्स भी सुनो तो थोड़ी सी वो अलग टाइप की लगती है, उनका बात करने का तरीका अलग है, बट if we just stay with it, for us the opportunities कि हम इसे आइसोलेशन में तो पढ़ नहीं रहे, then we can just keep it aside, but we have the opportunity to discuss it and question and ask and this and that. So if we were really voting for it, I would strongly vote for continue reading. इनफैक्ट हम तो ये भी सोच रहे थे अजान सुचितो को बुला के एक टॉक करवा लें, पर अभी लगता है वी आर नॉट रेडी फॉर दैट एटलीस्ट, बट फॉर द बुक इट विल बी रियली सैड इफ वी पुट अ पॉज ऑन इट नाउ। दैट वाज नॉट द इंटेंशन। बुक की रीडिंग जो है उससे कुछ ना कुछ हम गेन कर ही रहे हैं, आई एम ओनली सेइंग वी आर गेनिंग, नो डाउट, लेकिन एट टाइम इट इज सो कंफ्यूजिंग दैट ठीक है, द ब्रॉड सेंस हम समझते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, लीव असाइड द डिटेल्स। वो अभी रजिस्टर नहीं होती, वो रजिस्टर नहीं होती डिटेल्स ना, इट कांट रजिस्टर फॉर लॉन्ग टाइम, टेम्पररी रजिस्टर होती हैं, देन दे गेट इरेज्ड, ब्रॉड आइडिया रजिस्टर रहते हैं। दिस इज माय एक्सपीरियंस। एनीवे ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। ऐसा कोई, आई डोंट हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशन, बट ओनली थिंग इज आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड एट टाइम्स with the terminology or details which have been presented. मुझे एटलीस्ट ये लगा कि डिटेल जो है शायद जिस लेवल पे मैं हूँ, समटाइम उनको कंप्रीहेंड करना, उनको रिटेन करना, इट्स ए चैलेंज। I accept it. Maybe others are not accepting this, or others are not experiencing like that. At least I have a limitation, so I'm admitting. It's okay, we can continue. It's okay. I'm not losing anything, I'm gaining something. If you're gaining more, ऐसा ही हो रहा है, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो इतने सवाल आ रहे हैं, नहीं तो रीडिंग कर लेते हैं। my gain is much less than your gain. It's okay, I'm also gaining something. It's okay, we can continue. We can continue. पायल जी, आप
दीपक जी आप म्यूट कर लीजिए, उससे आवाज आ रहा है। आई थिंक उसका बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो यही है कि कंफ्यूजन को हेडलॉन्ग कन्फ्रंट करो। ये कारपेट के अंदर ब्रश करते करते ना बहुत ज्यादा और कंफ्यूजन होता जा रहा है। आई थिंक ओनली सोल्यूशन, अगर नहीं आ रहा ना तो आप नेक्स्ट बुक रीडिंग को लो। जो नेक्स्ट बुक रीडिंग होगा वो एक सेशन में एक रीडर आप बनो, बिकॉज जब बहुत ज्यादा करना पड़ता है ना उसके सर खपाना पड़ता है। और जब छोटी चीजें, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तब तो एक ओवरऑल ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, पर जब ट्रांसलेशन या कुछ ऐसा करना पड़ता है ना तो थोड़ा माइन्यूटली ज्यादा देखना पड़ता है, कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता है, बट देन कंफ्यूजन थोड़ा सॉर्ट आउट भी होता है। आप ही उसको 3-4 बारी जब चीजें पढ़ते हैं ना तो उसी पैराग्राफ का मीनिंग आपके अपने लिए भी बहुत चेंज हो जाता है। तो आई गेस मुझे ऐसा लगता, वैसे तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है, आप बोलते नहीं करो मेरी कल रीडिंग है, मेरी चांस नहीं होती है, मैं बहुत खुश होती बट मैं फिर भी बोलूंगी कि if something is troubling you, उसको कन्फ्रंट करो। आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में वो जितना भी उस समय तंग दे, बट रिजॉल्व वही हो पाता है, किसी और वे में रिजॉल्व नहीं हो पाता। वो ये ना बहुत हैबिट है कि जिस चीज से जो चीज तंग करे भाग लो भाग लो भाग लो। ये ना बहुत नेचुरल हैबिट है, मगर ये बहुत तंग करती है आगे जाके। So you might as well resolve it right here and now. So it is a problem. Confusion बहुत होती है जब करने बैठते हैं ना, बहुत confusion होती है, believe me, it is true. But yes, we need to, as Sadak, we need to look for a resolution for that rather than like everybody else. नहीं तो हम में और दूसरों में फिर ज्यादा फर्क रहा नहीं। That's it. That's it. I think we have a good discussion today. Let's. I hope we will gain more. अधिष्ठान पारमी बढ़ाएंगे, वीरी की पारमी बढ़ाएंगे, और प्रज्ञा की पारमी बढ़ाएंगे, and try to face the confusion head on. कब तक रहेगा? Go slowly, there's no hurry. You can spend on one section, we can spend 2 days, 3 days. Let's understand everything to the extent possible. You can read half a section, and if there is, but that has to be told by the person who is reading. हाँ, ये चीज clear नहीं है, सब चलो, let us discuss. Then we will discuss. Hopefully, we'll come to a resolution. So I don't see any reason why we can't understand. Let's continue.